Hello everyone, this is class 10 chapter 10 revision video part 3 of exercise 10.2. Today we will start from question number 9 and we will complete this exercise in this video. Now question number 9 is xy and x dash y dash are two parallel tangents. Here is the circle, ठीक है, और दो tangents हैं इसमें. ये जो आपको tangents दिखाई दे रहे हैं parallel tangents, this is xy, this is x dash y dash. तो x y and x dash y dash are two parallel tangents. These are parallel to a circle with center O. इस सर्कल का सेंटर गिवन है आपको O. And another tangent, one more tangent is there, that is AB, and the point of contact is C. This is the tangent here. Another tangent AB with the point of contact C, which intersects xy at A and x dash y dash at B. What you have to prove? You have to prove this angle AOB is 90 degree. This angle you need to prove is 90 degree AOB. So let's start with the congruence part. So start with taking these two triangles. This is very easy method. Take two triangles. We are taking triangle AOP या PAO, whatever you say, AOP, and similarly another triangle AOC. Let's find three equal pairs in these two triangles. First is AP is equal to AC. You all know the reason, I think, that these are the tangents, two tangents from an external point, and the length of the tangents from an external point to a circle are equal. A ही point से आपके ये दो tangent जा रहे हैं AP और इधर जा रहा है AC. तो एक ही पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स जाते हैं वो थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, वो दोनों लेंथ्स इक्वल होती हैं. तो व्हाट यू कैन राइट हियर, व्हाट इज द रीजन? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट पेयर इज डन. सेकेंड, OA is common among these two triangles. See, so OA is common. So we have found two pairs. Now we are left with the third pair. Let's look for the third pair. See, this is the radius. Center से circle तक line जा रही है. This is also radius. Center से circle तक line जा रही है. This is also radius. तो OP is equal to OC. OP is equal to OC. So all the sides, all the three sides of one triangle are equal to the other three sides of the other triangle. The reason is radius of circle. Now triangle AOP is congruent to triangle AOC, and which rule we have taken? SSS rule. Up, if these triangles are congruent, then you know that triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles, and we have found 3 sides equal. It means 3 angles are also equal by CPCT. So we can discuss, we can write down those angles which we need, जो हमें चाहिए. हम तीन में से वो एंगल लिख सकते हैं. तो आपको ये एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री. तो you are interested in this angle, these two angles. तो this point is O, सेंटर. ये आपका यहाँ लाइन के नीचे दब गया तो मैंने साइड में लिख दिया. तो यहाँ पर आपका ये एंगल लेट कर लीजिए, कोई भी नेम दीजिए, x दे दिया तो ये भी x हो गया. ठीक है. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. रीजन देखिए, आप O का सेकेंड प्लेस पे पड़ा है और इधर भी O सेकेंड प्लेस पर पड़ा है. इट मीन्स दीज एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT. ठीक है. तो वी कैन राइट डाउन POA, एंगल POA, और इस ट्राइंगल का O भी इक्वल है, और रीजन है CPCT, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के. कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर चुके हैं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ले रहे हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स सेम प्लेस वाला पार्ट ले रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे. CPCT से इक्वल हो गया. लेट कि ये दोनों क्या है,
x POA इक्वल टू AOC BX, दोनों x x है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं आपको प्रूफ नहीं करके दिखा रही हूँ, सिमिलरली आप एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ सकते हैं कि आपने एक बार कांग्रेस दिखा दी तो आपको दूसरी बार दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, स्टिल मैं आपको 3 पेयर्स बता रही हूँ, बिल्कुल उसी की तरह इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं। सी OB इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये दोनों रेडियस है OQ और OC, और B पॉइंट से टेंजेंट जा रहे हैं BQ एंड BC, तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी ट्राइंगल्स जो हैं वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और CPCT से आपके फिर से ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। लेट दीज टू एंगल्स बी y, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली मैं इन नहीं लिखती हूँ, सिमिलरली ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू O, ठीक है। कॉमन क्या है OBQ, तो यहां से आपका फिर से एंगल O और एंगल O कॉमन आ जाएगा। इट मींस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल QOB या BOQ अगेन बाय CPCT, एंड लेट दीज टू एंगल्स बी इक्वल टू y, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो अब हम लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, जो प्रूव करना है बस उसी रिजल्ट को रख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम इनको देखें तो ये आपको क्या लग रहा है, लीनियर पेयर तो नहीं, ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है। 4 एंगल्स हैं x x y y, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन होगा, लीनियर पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एंगल्स लिख रही हूँ, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये मिला के स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कौन सा एंगल बनता है 180 डिग्री, चाहे आप जितने मर्जी बना लीजिए, सबका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। यहां से आ गया आपका 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई, 2 इधर आके डिवाइड तो 90 डिग्री। एंड व्हाट इज दिस x प्लस वाई, x ये है y ये है, x प्लस वाई आपका क्या हो गया एंगल AOB। अगर फिगर थोड़ी सी मैसी हो गई है, अगर मैं आपको बताऊं तो x और y ये था आपका, आपको क्लियर हो जाए कि कैसे है। दिस वॉज योर x, दिस वॉज योर y, तो आपने प्रूव कर दिया x प्लस वाई 90 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, एंगल AOB इज 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को SS से कॉन्ग्रुएंट किया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब वे 4 एंगल्स जो हैं, दीज एंगल्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो 2x plus 2y 180 डिग्री, 2 into x plus y 180, x plus y is 90 and x plus y is nothing else, it is AOB only. So AOB is 90 degree, hence proved. Now question number 10. Prove that the angle between two tangents, दो tangents के बीच में एंगल जो है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, लेट्स टेक इट सेंटर एज O। अब ये पॉइंट है जहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ P, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं PA एंड PB टू अ सर्कल विद सेंटर O। और आपने प्रूव करना है इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन, कहां से टेंजेंट्स ड्रॉ किए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो सर्कल के बाहर हमने कोई पॉइंट लिया है P, और यहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं किस पर, टू अ सर्कल। आपने प्रूव करना है ये जो एंगल बना है टेंजेंट्स के बीच में, वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि इसका सम 180 डिग्री है, सॉरी सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है 180 डिग्री है। किसके साथ ये सप्लीमेंट्री, किसके साथ इसका टोटल 180 डिग्री बन रहा है। तो सप्लीमेंट्री टू द एंगल, ठीक है, इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो ये है यहाँ लाइन, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पे लाइन आ रही है,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो दोनों दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, दोनों को आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे और जो एंगल बनेगा उसके साथ ये एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो हमने स्टार्ट किया था विद क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और 2, वो इसी से रिलेटेड था जहां आपने एंगल निकाल के दिखाया था। ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, एज यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली हियर this is the tangent and this is the radius through the point of contact, so this is also 90. as you can see that कि ये आपका 4 sided figure है, 4 sided figure है means it is a quadrilateral। तो quadrilateral के 4 angles का sum कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में मैं एंगल्स को पूरा 3 वर्टिसेस से नेम नहीं लिख रही हूँ, सिंपल लिख रही हूँ। यहाँ पर आपका एक एंगल A बन रहा है, एक एंगल O बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल B बन रहा है और प्लस एंगल P बन रहा है। आप चाहे तो एंगल्स को 1 2 3 4 नेम भी दे सकते हैं। इन सब का टोटल होगा 360 डिग्री। रीजन है कि एंगल्स हम प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे ट्राइंगल में लगती है। अब आपका A और B तो है 90 90, तो दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 90 प्लस O प्लस B इज ऑल्सो 90 प्लस P, इट इज 360। Now 90 plus 90 is 180. So the total of these two is 180. So I am keeping O and P on the same side and taking plus 180 जो था उसको राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, ट्रांसपोजिशन कर रही हूँ इक्वेशन में। तो 360 माइनस 180, तो एंगल O प्लस एंगल P का सम कितना आ गया 360 माइनस 180। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंगल O जो है और P ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। तो एंगल P जो है वो O के साथ सप्लीमेंट्री है। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, ये 2 टेंजेंट्स हैं, इनके बीच में एंगल है एंगल P, और आपने प्रूव करना था ये एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी सम 180 बना रहा है। किसके साथ, जो आपका दूसरा एंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट उनसे हमने सेंटर पे बनाया है, लाइन बनाई है, और जहां ये दोनों ज्वाइन हो रही है लाइन, वहां पर जो एंगल O बन रहा है, ये एंगल उसके साथ सप्लीमेंट्री है। तो दिस वी हैव प्रूव कि एंगल O प्लस एंगल P इज 180 डिग्री, इट मींस दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। क्या मतलब है इसका, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि बाहर बनाना है, यानी सर्कल को के बाहर बनाना है अपने पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब। अगर आए वर्ड आपका इनस्क्राइब, तो इन वर्ड दिखे आपको तो आप अंदर बनाएंगे, और अगर आपको लिखा है कि वो सर्कमस्क्राइब है, किसके सर्कमस्क्राइब है, सर्कल के बाहर है। और बनाना कैसे है, सर्कमस्क्राइबिंग में आपने उसकी हर एक साइड सर्कल को टच करनी हुई बनानी है, यानी टेंजेंट बनाना है। तो अगर आप पहले पैरेललोग्राम बनाते हो और फिर अंदर सर्कल बनाते हो, तो आप वो भी ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे फिगर बना सकते हो, यानी सर्कल के बाहर आपका पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम आपने कैसे बनाना है कि इसकी हर एक साइड जो है, 4 की 4 साइड्स वो सर्कल को टच करती हुई जाएंगी, यानी टेंजेंट्स। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये फिगर मैंने बनाई है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ए बी जो है वो उसको पी पे कट कर रही है, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एस। ठीक है, तो टेंजेंट के 4 पॉइंट्स हमने लेट कर लिए हैं, जो भी आप लेट करना चाहें। प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो एक रोम्बस है। यानी आपको ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम तो है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस यू कैन यूज। ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू प्रूव, रोम्बस। रोम्बस के लिए अगर पैरेललोग्राम की
अपोजिट साइड इक्वल है, उसके साथ साथ आपकी एडजेसेंट भी इक्वल हो जाती हैं, तो वो आपका रोम्बस बन जाता है। ठीक है, तो अभी बता एडजेसेंट कैसे, मतलब ये भी इक्वल हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप वही वाली थ्योरम 10.2 याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट को कंसीडर करते जाइए। ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पर, ए पी एंड ए एस, तो दीज टू आर इक्वल, और रीजन वही है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। सिमिलरली आप बी से चेक कीजिए, बी पी एंड बी क्यू, तो याद रहे पी की साइड पे ही लिखे आप, बी पी इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू, जैसे आपने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। अब सी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, फिर से थ्योरम से ये दोनों इक्वल होंगे। सो सी क्यू इधर लिखूंगी, क्यू इधर है, इज इक्वल टू सी आर। अब डी से लिखते हैं, डी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक जा रहा है डी आर और एक जा रहा है डी एस, तो आर वाली साइड पे लिखती हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्योंकि ये इक्वल है, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऐड में प्रॉब्लम होगी, तो आपके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसी तरह ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ये दोनों। तो अब आप इन इक्वेशंस को, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, वो उसी की तरह आप 4 को ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें हमने रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से AP प्लस BP मैं ऐड कर रही हूँ 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो इन्हें ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये ऐड इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है। इसी तरह से मैं AS और DS को भी कंबाइंड लिख के इस तरह से लिख देती हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं हम प्लस में। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या आ रहा है ऐड करके आपका AP प्लस BP, AP प्लस BP, दिस इज व्हाट AP। सिमिलरली CR प्लस DR इज कंप्लीटली CD, AS plus DS is what? AD, plus BQ plus CQ is complete BC. ठीक है, now the next point beyond that. अब we know that this is a parallelogram, ये जो है पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो AB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। तो दिस यू आर गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, AB CD के इक्वल होगा एंड AD किसके इक्वल होगा? BC के। तो दीज टू रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है, तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे आप इसे AB से रिप्लेस कर दीजिए, चाहे आप इसे CD से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ और AD इसी तरह से BC को भी रिप्लेस कर रही हूँ AD से। और रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल है, बिकॉज AB इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो मैं BC को रिप्लेस कर सकती हूँ AD से, इक्वल है दोनों। इसी तरह से CD को रिप्लेस कर सकती हूँ AB से। आप किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि ये ट्वाइस बन जाए। इसी तरह से यहाँ पे भी आपका क्या बन गया? ट्वाइस बन गया। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो AB किसके इक्वल आ गया? AD के। आपकी अपोजिट तो पहले से इक्वल थी, अब एडजेसेंट भी इक्वल आ गई, AB और AD ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप सारी साइड्स कैसे इक्वल हो गई? यू ऑल नो दैट AB किसके इक्वल है? CD के। तो यहाँ AB है तो ये AD के तो इक्वल है, CD के भी इक्वल होगा क्योंकि ये गिवन है। इसी तरह से ये जो आप AD देख रहे हैं, AD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये भी अपोजिट साइड के इक्वल है, तो AD किसके इक्वल है? BC के। तो AD AB के तो इक्वल है, साथ ही साथ ये BC के भी इक्वल है। तो हो गई ना चारों साइड्स इक्वल, ऑल दी 4 साइड्स इक्वल। सो ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपको अपोजिट इक्वल गिवन हो तो आप अगर कोई एडजेसेंट एक पेयर इक्वल कर देते हैं, जैसे मैंने एडजेसेंट क्या होता है? जो कॉमन वर्टेक्स के साथ हो, जैसे AB और AD, आपने अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया तो एडजेसेंट को इक्वल कर दिया। ये तो होती है अपोजिट और ये क्या होती है? एडजेसेंट, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, जबकि अपोजिट में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होता। इसमें AB आ रहा है, इसमें CD आ रहा है, और एडजेसेंट में कॉमन होता है वर्टेक्स, जैसे AB AD,
तो ए कॉमन आ रहा है। अगर आप कोई भी एक पेयर एडजेसेंट का इक्वल कर देते हैं तो अपने अपोजिट पहले से इक्वल है तो वो आपकी ऑल साइड्स इक्वल आ जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ all sides are equal, so ABCD is a rhombus। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर कोई सर्कल को पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रोम्बस होता है। दिस यू हैव प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आप आरडी में भी देखोगे, थोड़ा लंबा भी है बट इजी है कंसेप्ट। इसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है जो आपने लास्ट ईयर किया था, तो बहुत इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाई है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। फिर से आपको सर्कमस्क्राइब का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल जो है वो सर्कल के बाहर बनी है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर बनी है। और किस तरह से बनी है कि उसकी सर्कल को, उसकी सारी साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स सर्कल को टच करती हुई, मीन्स सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स हैं। और अब इस सर्कल का रेडियस भी आपको गिवन है, ओ इसका सेंटर है और रेडियस भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। और यहां से आपका जो BC टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है D, और आप अपने आप लेट करेंगे ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। दिस पॉइंट इज गिवन टू यू D। BD और CD की लेंथ भी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड इन दिस, करना क्या है आपने इस क्वेश्चन में, आपको एक साइड तो गिवन है BC 14, 8, 6 + 8, आपको ये दोनों साइड्स निकालनी है AB और AC। आपको इसमें दो साइड्स निकाल के दिखानी है AB और AC। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको यूज करते हुए सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स को नेम दे देते हैं। D तक यहाँ पर है, लेट्स गिव इट नेम E, और इसको दे देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को F नेम। अब मैं O से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करती हूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इससे भी O को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं O को तीनों वर्टिसेस के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। ये सारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने A से B से C से सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ वही जो आपकी थ्योरम 10.2 है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ जा रही है वो लेंथ इक्वल होंगी। तो यहाँ से A पॉइंट से एक टेंजेंट आपका जा रहा है AE और एक जा रहा है आपका AF, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। आप सपोज कर लीजिए AE और AF जो है वो दोनों क्या है, x, वही लिया है हमने, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका ये 6 है तो B पॉइंट से आपके दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक तो जा रहा है BD और एक जा रहा है BE। तो BD अगर 6 है तो BE भी क्या होगा, 6। इसी तरह से BC अगर 8 है तो C पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक CD एंड CF। तो CD अगर 8 है तो CF भी क्या होगा, 8। तो आपकी ये पूरी साइड जो है AB वो हो गई 6 + x। यानी अगर आपको x पता चल जाए क्या है तो आप 6 में इसको ऐड करके पूरी AB की लेंथ बता सकते हो। सिमिलरली आपकी ये वाली साइड जो है ये है आपकी 8 + x। तो एक x पता लगने से आपको बाकी की दोनों साइड्स पता लग जाएंगी। अब हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे, इस ट्राइंगल जब आपको ऐसे दो वन साइड गिवन है और बाकी की दो साइड्स निकालनी है सर्कमस्क्राइब में, तो आपके पास एक ही मेथड बचता है, वो है कि आप एरिया निकालें इस ट्राइंगल का। एरिया से आपका ये x अननोन आएगा। अब एरिया कैसे निकालना है, इसका एरिया आपको दो वे से निकालना है, क्योंकि कोई भी अगर आपने कोई भी वेरिएबल निकालना है तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के लिए आपके पास दो चीजें इक्वल बनेंगी तभी आपकी इक्वेशन बनेगी। दो चीजें इक्वल कैसे बनेंगी, एक बार आप इसका एरिया निकालेंगे ABC का हीरोन्स फॉर्मूले से। आपको तीनों साइड्स गिवन है इसकी, 6 + x, 8 + x एंड 14, ठीक है। तो आप इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to S minus A, S minus B, S minus C।
this is the Hero's formula. We are using Hero's formula to find the area of this triangle ABC. So first, what is S? S is the semi perimeter. ठीक है, पहले S निकाल लेते हैं. सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बाई 2. पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और हम निकाल रहे हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, आधा पेरीमीटर. तो आपने पेरीमीटर निकालना है, सब साइड्स को ऐड करके उसका हाफ कर देना है. तो हम इधर सब साइड्स को ऐड करके S निकाल लेते हैं रफली, फिर उसको यूज करेंगे. ठीक है, S पहली साइड है आपकी ये वाली जो कि है 6 प्लस एक्स, दूसरी साइड है आपकी 14, 6 प्लस 8 इज 14, और थर्ड साइड है AC विच इज 8 प्लस एक्स. और आप सेमी पेरीमीटर ले रहे हो, सम ऑफ ऑल साइड्स ले चुके हो, तो आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड. अब आप नंबर्स ऐड कर लीजिए. 6 प्लस 14 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28, प्लस x प्लस x इज 2x बाई 2. अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया आपका 14, 2 14s आर 28, 2 बाहर ले लिया तो अंदर 14 प्लस x अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 14 प्लस x. अब आप यहाँ पर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू रख सकते हैं. ये जो S है, दिस इज सेमी पेरीमीटर, सो दिस इज 14 प्लस x. S माइनस a यानी पहली साइड, A B C आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो A इज दिस साइड. ठीक है, तो -6 माइनस x, हमने -a करना है, पहली साइड को माइनस करना है, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -6 माइनस x. ऐसे ही हमने S माइनस b करना है, तो सेमी पेरीमीटर है हमारा 14 प्लस x, ये साइड है आपकी 14, इसको ऐड करके आपका क्या आएगा 14, तो -14. अब आपकी थर्ड साइड है S माइनस सी, तो ये माइनस कर रहे हैं. S कितना है 14 प्लस x, और C क्या है आपका -8 माइनस x हो जाएगा. इस तरह से आपने एरिया निकाल लेना है. पहले बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी, जिसमें आराम से रूट भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है. तो यहाँ से x आपका कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 आ गया 8. ये आपके सारे मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, और इनटू 14 से 14 कैंसिल हो गया, आपका आ गया x. x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 आपका आ गया 6. तो ये आपकी इक्वेशन, ये एरिया आ गया 14 प्लस x इंटू 8 6 जार 48x. तो आपकी ये इक्वेशन एरिया आ गया. अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक और एरिया चाहिए, तब आप दोनों को इक्वल करोगे तो आएगा. अब एक मेथड तो हमने ये यूज कर लिया एरिया निकालने का, हीरोन्स फार्मूला. अब दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे एरिया निकालने का. आप एरिया निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक तो बन रहा है AOB, ये वाली ट्राइंगल, मैं अलग अलग शेडिंग कर देती हूँ इसमें. एक आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, फिर इसके अंदर आप ये वाली ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे, अलग शेडिंग कर दिए BOC का, और फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे थर्ड. तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के आप उनको प्लस करेंगे, वो भी तो होल ट्राइंगल का एरिया आएगा. तो तीनों ट्राइंगल्स की एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हीरोज फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें आपका सिंपल लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो आप क्लास 7 में पढ़ते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. उसमें आप क्या करते हो कि अगर आपको ट्राइंगल ऐसे दी हुई है और ये हाइट दी हुई है, तो आप क्या लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो इसमें आपको हाइट्स गिवन है. अब रेडियस इस सर्कल की गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है सेंटर से सर्कल तक, ये भी 4 हो गई. ये भी रेडियस है सेंटर से सर्कल तक, तो ये भी 4 हो गई. सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखिए, जो मैं डार्कन कर रही हूं इसकी साइड्स AOB, ये वाली. ठीक है, इसका बेस हो गया 6 प्लस x और हाइट हो गई 4. मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हूँ, दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल, इसका बेस है 6 प्लस x और हाइट है 90 डिग्री है ना ये स्ट्रेट, तो 4. तो आप किसका एरिया निकाल रहे हो, सबसे पहले निकाल रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. आप 3 ट्राइंगल को प्लस कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, इस तरह से आप 3 ट्राइंगल्स का AOB का क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस। ठीक है, अब निकाल रहे हो आप, इस ट्राइंगल को भूल जाओ AOB। अब ट्राइंगल जो ले रहे हो वो कौन सी ले रहे हो, BOC, ये वाली ट्राइंगल जहां ये खत्म हुई है ना, वहां से ये शुरू हो रही है अगले वाली BOC। बेस क्या है 14, हाइट क्या है 4, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एरिया ऑफ AOC। एरिया ऑफ AOC क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस क्या हो जाएगा, अब आप ये ट्राइंगल यहां खत्म हुई है तो ये वाली ट्राइंगल ले रहे हो, बेस क्या हो जाएगा आपका 8 + x और हाइट आपकी फिर से क्या है 4, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आपने तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेना है। तो अब आप यहां से मैं 2 कैंसिल करती जा रही हूँ, सबका हाफ से 4 कैंसिल हो गया सबका। तो ये मैं अलग अलग ब्रैकेट में ऐसे शो कर देती हूँ कि आप इन तीनों को प्लस कर रहे हो, और सब में आपने हाफ से 4 कैंसिल करके यहाँ 2 लिख दिया। अब कॉमन क्या आ रहा है, सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर लिखिए। ब्रैकेट में क्या बचा आपका, इस ब्रैकेट में तो बचा 6 + x, 2 तो कॉमन ले लिया। इसमें बचा है 14, 2 कॉमन ले चुके हैं आप। इसमें बचा 8 + x × 2 था, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 8 + x। तो यहां से आ गया 2, 6 + 14 20, 20 + 8 is 28 plus x into x is 2x। अब इन तीनों को ऐड करके आपका वही आएगा, तीनों को ऐड करके कंप्लीट ट्राइंगल का ही एरिया आएगा। तो ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब हमने 2 तरह से ABC का एरिया निकाल लिया, एक तो आपका ये है ABC का एरिया, एक आपका ABC का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से है। तो अब अगर ये दोनों सेम ट्राइंगल के ही एरियाज हैं तो हम इनको इक्वेट करके इक्वेशन बना लेते हैं। लेट्स फॉर्म एन इक्वेशन। I need to erase this to complete this answer। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। आपका आ रहा है, ये वाला एक एरिया आया है आपका 14 + x इंटू 48x इज इक्वल टू, दूसरा आया है आपका 2 × 28 + 2x। अब ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली समझ आ जाए, वैसे तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अब सारा पार्ट इरेज कर रही हूँ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने ट्राइंगल का एरिया 2 तरह से निकाला है, हीरोन्स फॉर्मूला से और उससे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 3 पार्ट्स का सम। अब दोनों को इक्वल, क्योंकि वेरिएबल निकालना है, x निकालना है, तो एक इक्वेशन होनी जरूरी है और इक्वेशन के लिए इक्वल होना जरूरी है। इक्वल कब आएगा, जब आप एक ही चीज 2 बार, तो मैंने एरिया 2 तरीके से निकाला है। अब दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है, इसलिए वो क्या है, इक्वल। अब स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि इसका ये रूट कट जाए। मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 14 + x 48x। अब ये बिना रूट के आ गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 28 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने 2 का भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में। अब और सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को, मैं कोई 48 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ इतना लंबा करने के लिए, मैं उल्टा इसमें से कॉमन लेने लगी है। ठीक है, चाहे तो आप पहले भी कॉमन ले सकते थे और इजी हो जाता है। एक काम करते हैं, यहीं से कॉमन ले लेते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, उससे आपका और इजी हो जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्वायर लेने से पहले ही कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको स्क्वायर बताऊंगी, वो स्टेप आधे बच्चों को हो सकता है कि पता ही ना लगे कि स्क्वायर है बाहर, तो स्क्वायर लेकर ही कॉमन लेना। तो पहले ही कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 पहले से था तो 4 हो गया। अब 2 मैंने और कॉमन लिया तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ x हो गया। अब मैं करती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो इधर से रूट आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये भी आप देख रहे हो 14 + x है, ये भी 14 + x का स्क्वायर है। तो मैं
ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका ऐसे था होल स्क्वायर, मुझे होल स्क्वायर भी नहीं खोलना पड़ेगा, कट जाएगा ये 14+, तो ये आपका उधर जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह से 48x था, ये 16 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ट्रांसपोजिशन कर दी। अब 14+x एक कट जाएगा, स्क्वायर है ना ऊपर, जैसे आप x² हो तो एक x कट कर देते हो ना, क्योंकि 2 टाइम्स है तो एक x कट कर देते हो, तो यहाँ पे भी 2 पावर्स है, कट कर दिया। तो अब आपको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सिंपल हो गया 14+x। और यहाँ 16 के टेबल में ये आ रहा है 3x, और आपकी इक्वेशन देखो कितनी सिंपल हो गई, 3x - x = 14, 2x = 14, और आपका x आ गया 7। अब आप साइड्स निकाल रहे थे, आपको मैंने कैसे कहा था, जैसे यहाँ सर्कल है और ट्राइंगल इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है। थोड़ा सा टेंजेंट प्रॉपर नहीं बना है, तो मैं टेंजेंट बना देती हूँ। यहाँ पर आपकी फिगर मैंने इरेज कर दी थी, छोटी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे आपकी सर्कमस्क्राइब हो रही थी ट्राइंगल, और ये आपको गिवन था D, और ये आपका 6 और 8, यहाँ पर था आपका 0.4 सेंटीमीटर, और आपको AB और वो निकालना था, इसको आपने XX सिलेक्ट किया था A पॉइंट से, और ये B से दोनों लेंथ इक्वल है 6, ठीक है, ये फिगर हम कर चुके हैं, तो ये 8, तो आपकी ये साइड थी 8+x और ये साइड थी 6+x। तो अब आप AB निकाल सकते हैं, AB क्या है आपका 6+x, तो आपने x निकाल ली है, x is 7, तो आप x की जगह 7 रख सकते हैं, तो AB आपकी आ गई है 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप AC निकाल सकते हैं, AC है 8+x यानी 8+7, तो 15 सेंटीमीटर, तो आपकी दोनों लेंथ्स आ गई 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए देख लेते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अब आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, फिर से सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं, इसको कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसकी सारी साइड्स को टच करते हुए, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ये ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा ही बन गया है, तो आप सारी साइड्स को टच करता हुआ ऐसे एक फिगर बना लेंगे आप, ठीक है, 4 साइड की फिगर बना ली। अब आपने क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल को नेम दे देते हैं। अब इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, एक तो है साइड AB और इसके अपोजिट में है CD, ये अपोजिट साइड्स है। तो क्या प्रूव करना है आपने कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं सेंटर ऑफ सर्कल। कैसे, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये वाली साइड सेंटर पे एंगल बना रही है, ऐसे दोनों एंड से ले आइए, इसी तरह से ये बना रही है। आपने प्रूव करना है ये अपोजिट साइड्स जो एंगल बना रही हैं इनका सम 180 है, सप्लीमेंट्री है। तो आपने क्या प्रूव करना है, एंगल AOB ये जो है और प्लस DOC और COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ अपोजिट साइड्स लिखा है, तो दोनों पेयर्स लेंगे, ये और ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी इनका सम भी 180 है। तो आपने प्रूव करना है AOD प्लस BOC इज ऑल्सो 180 डिग्री। अगर आप एक प्रूव कर देते हैं तो दूसरा सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है प्रूव करना। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दे दीजिए PQRS और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आपके बहुत सारे एंगल्स बन गए, इन एंगल्स को नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बहुत इजी रहेगा, नेम्स दे दिया आपने। और आपको पता है ये सारे एंगल्स मिला के 360 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स लेनी है, उनको कॉन्ग्रुएंट कर देना है और बाकी सिमिलरली होती जाएंगे। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए, ये पॉइंट आपका O है, सेंटर है, तो आपने एक ट्राइंगल ले ली AOP और एक ले ली AOS, AOP एंड AOS, सिंपली बता रही हूँ आपको, ठीक है।
आपने इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी। रीजन क्या है, ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एपी और एएस। ये क्विकली बता रही हूँ क्योंकि हम ऐसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। ये दोनों आपकी क्या है, रेडियस, सेंटर से सर्कल तक आ रही हैं, तो इसका ओपी और इसका ओएस ये दोनों रेडियस है आपकी, और तीसरा एओ एओ दोनों में है वो कॉमन है। तो एस 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 से ये ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो मैं सीधा लिख देती हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट है एओएस। तो यहाँ पर आ रहा है आपका एंगल ओ के इक्वल, दोनों सेकेंड प्लेस पर पड़े हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो इक्वल है। तो इसका एंगल ओ है 1 और इसका एंगल है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से अब आपको बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 इक्वल टू 4, ये सिमिलरली का साइन है, सिमिलरली का साइन है ये। 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। 7 इक्वल टू 8, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन सभी 8 एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री है, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो मैं इनका एंगल का सम 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका सम लिख देती हूँ 360 डिग्री। बहुत इजी हो गया। अब आपने क्या करना है, हमें पता है ये एंगल इक्वल है तो हमने रिप्लेस करना है ताकि ट्वाइस बन जाए, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो सम 180 चाहिए और यहाँ आपका है 360, तो ट्वाइस होना चाहिए ताकि 2 इधर आके डिवाइड हो, सबका ट्वाइस होना चाहिए। तो अब हमने देखना है कि हमने 2 को 1 लिखना है या 1 को 2 लिखना है। डिपेंड करता है आप कौन सा पेयर प्रूव कर रहे हैं। सपोज आप AOB और DOC को 180 करना चाह रहे हैं, तो AOB ये आपका 2 + 3 बनता है, यानी आपको एक एंगल चाहिए 2 और एक चाहिए 3। और DOC ये है आपका DOC ये वाला एंगल, तो 6 और 7 इनका सम आपको 180 डिग्री प्रूव करना है। ये आपका है AOB और ये है आपका DOC, तो आप ये प्रूव कर रहे हो। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, इसका मतलब 1 नहीं चाहिए, 2 से स्टार्ट है। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2। तो 2 + 2 ट्वाइस ऑफ 2, सीधा लिख देती हूँ ट्वाइस ऑफ 2, इनको यूज करके, ठीक है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 + 2 क्या हो गया, 2 + 2 ट्वाइस ऑफ 2। इसी तरह से आपको 3 चाहिए और 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3। जो एंगल आपको चाहिए वो आप लेते जाओ, बाकियों को रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एंगल में आपको जो चाहिए होंगे इधर वाले, तो आप वैसे ही रिप्लेस कर देंगे। अब आपको क्या चाहिए, 6 एंगल चाहिए, 5 + 6, 5 किसके इक्वल है, 5 नहीं चाहिए, देखिए, तो 5 की जगह आप क्या लिख दीजिए, 6, तो 6 + 6 ट्वाइस ऑफ 6। इसी तरह से 7 और 8 इक्वल है, हमें 7 चाहिए, 8 नहीं चाहिए, तो हम 8 को लिख देंगे 7, तो 7 + 7, क्योंकि 8 7 के इक्वल है, 7 + 7 ट्वाइस ऑफ 7। अब आप देख रहे हैं इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लीजिए, 2 + 3 + 6 + 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो 2 है इधर आकर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपने प्रूफ कर दिया 180 डिग्री। और ये जो 2 + 3 है ये आपका है एंगल, कौन सा है, 2 + 3 AOB। इसी तरह से 6 और 7 क्या है, 6 और 7 ये वाला एंगल है DOC। तो आपने प्रूव कर दिया AOB + DOC इज 180 डिग्री, यानी ये अपोजिट साइड्स हैं, तो ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही है क्योंकि इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। तो AOB और इसके अपोजिट वाली बना रही है COD, तो इनका सम है 180 डिग्री। इसी तरह से अब जब आपको दूसरा पेयर प्रूव करना है तब भी सेम आपने ऐसा लेना है, सिर्फ आपका चेंज यहाँ आएगा। कहाँ से चेंज आएगा, मैं इसे इरेज करती हूँ और बता रही हूँ। अब जब आपको प्रूव करना है AOD और BOC ये वाला पेयर, अपोजिट पेयर, कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है ये भी सप्लीमेंट्री है, AOD + BOC। तो आपको कौन सा एंगल चाहिए, 1 8 4 एंड 5, आपको चाहिए 1 8 4 एंड 5। तो अब आप 2 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, सिमिलरली भी लिख सकते हैं। अब आप 2 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि आपको 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, 1, तो 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1। इसी तरह से आपको 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो
तो आप 3 की जगह क्या लिखेंगे 4, 4 + 4 ट्वाइस ऑफ 4। या ऐसे ही आपको 5 चाहिए 6 नहीं चाहिए, तो 6 को आप रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो 5 + 5 ट्वाइस ऑफ 5। पहले आपने दूसरे रिप्लेस किए थे, अब आप दूसरे रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि अब आपको दूसरी साइड से इक्वल करनी है, ठीक है, ये वाली करनी है, ये नहीं करनी है। अब यहाँ से 7 और 8 हमें चाहिए 8, तो हम 7 को रिप्लेस कर देंगे 8 + 8 ट्वाइस ऑफ 8। तो यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिप्लेस करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, आप 1 की जगह भी 2 लगा सकते हैं, 2 की जगह भी 1, तो दिस विल यू एडजस्ट अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट कि कौन सा एंगल आप इक्वल कर रहे हैं। तो 2 कॉमन आ गया, 1 + 4 + 2 5 + 8 इज इक्वल टू 360, और ये 2 जो है इधर आके डिवाइड होगा तो आ गया 180 डिग्री। अब ये आ रहा है 1 + 4 + 5 + 8, ठीक है। अब 1 + 8 तो क्या है आपका AOD, तो 1 + 8 ये आपका हो गया AOD, और जो 4 और 5 है वो आपका ये वाला एंगल है यानी BOC। तो आप प्रूव कर चुके हैं AD और BC जो है वो अपोजिट साइड्स हैं, AD और BC। तो वो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, AD सेंटर पे ये एंगल बना रही है AOD, BC बना रही है BOC, तो ये दोनों का टोटल 180 डिग्री आ रहा है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं एट दी सेंटर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।